Hello students, welcome back to my channel Pharmacy with Priya. So this is the lecture 7 of a GPAT cracker series, and in this lecture we will discuss the defects of tablets. So let's get started with the video. So in this, first I will give you a brief introduction of the defects that arise in the tablet. So what happens is, whenever you are manufacturing a tablet, okay, whenever an industrial pharmacist is manufacturing a tablet, he or she might encounter with some defects, okay, and these defects can be visual or functional. They can be both. Visual meaning what? Visual is you can see them with your eyes, visually you can detect them, and functional is they are due to your faulty formulation. Means if there is any problem in the formulation, then functional defects arise. So when we are talking about the visual defects, we need we need to take care of the inadequate fines and moisture in the granules, or sometimes they can also occur due to faulty setting of machine. So I will explain in Hindi once. विजुअल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके ये जो फाइन्स वगैरह हैं, ठीक है, उसी से ही आप टैबलेट मैन्युफैक्चर करते हो, तो जब वो फाइन्स इनएडिक्वेट होते हैं या फिर उन ग्रैन्यूल्स में मॉइस्चर आ जाता है या फिर मशीन की फॉल्टी सेटिंग हो जाती है, तो विजुअल डिफेक्ट्स आपके अराइज हो जाते हैं. ओके, सो विजुअल एंड फंक्शनल दो डिफेक्ट्स की हमने बात की. फंक्शनल आपके फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आएंगे, और विजुअल डिफेक्ट्स के लिए हमने क्या बोला कि फाइन्स अगर इनएडिक्वेट हैं, ग्रैन्यूल्स में अगर मॉइस्चर है या फिर मशीन की सेटिंग ठीक से नहीं हुई है, तो भी ये हो जाते हैं. नाउ बेसिकली इस पूरी पीपीटी में और हमारे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी विजुअल डिफेक्ट्स आर ऑफ मेन यूज, तो हम उसको ही पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में. When imperfections arise in following parameters, then an industrial pharmacist encounters the visual defects. हम बोल रहे हैं कि जब भी कोई भी imperfection आती है, जो जो मैंने यहाँ पैरामीटर मेंशन किया उनमें, तो हमें विजुअल डिफेक्ट देखने को मिलता है. अब वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं? फॉर्मुलेशन का डिज़ाइन कैसा है, टैबलेटिंग की प्रोसीजर क्या है, और आपकी मशीन कैसी है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ फॉर्मुलेशन, प्रोसेस ऑफ टैबलेटिंग एंड मशीन सेटिंग, ये तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक टैबलेट बना रहे हो. सो विजुअल डिफेक्ट्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं? कैपिंग, लैमिनेशन, क्रैकिंग, चिपिंग, स्टिकिंग, picking, binding and double impression. What all defects come under the visual defects are capping, lamination, cracking, chipping, sticking, picking, binding and double impression. I hope this is clear. So let's move on to the next slide. One by one we will be discussing the defects and its remedies. Okay, causes and remedies also. So first of all we will start with capping. In capping, what happens is the upper and lower segment of the tablet gets separated horizontally, either fully or partially from the main surface of the tablet. It comes out as a cap during ejection from the tablet surface. So capping में क्या होता है कि जैसा आपका जो टैबलेट है उसका एक ऊपर का सरफेस होता है, एक नीचे का सरफेस होता है, वो दोनों ना सेपरेट हो जाते हैं आपके टैबलेट के सरफेस से. या तो वो पार्शियली सेपरेट होंगे या फिर वो फुल्ली सेपरेट हो जाएंगे. ओके, और जब आप इजेक्ट कर रहे हो अपने टैबलेट को, तो वो एक एज अ कैप की तरह बाहर आ जाएंगे. तो बेसिकली क्या होगा, आपकी टैबलेट जो है खराब हो जाएगी, है ना. उसका सरफेस ऐसे बाहर थोड़ी ना आना चाहिए, अलग अलग थोड़ी सेपरेशन होनी चाहिए. सो इन कैपिंग दिस हैपेंस, द सर्फेसेस सेपरेट. वो थोड़े से पार्शियली भी सेपरेट हो सकते हैं, फुल्ली भी सेपरेट हो सकते हैं. Now, second point is it can occur due to the entrapment of air in a compact during the compression and subsequent expansion of tablet on ejection of a tablet from die. So, what is the reason? हम बोल रहे हैं कि it can occur due to the entrapment of air in a compact. जब आप compression कर रहे हो और अगर उसके अंदर air चली गई, ठीक है, एयर जाने से क्या होगा, आपकी टैबलेट एक्सपैंड हो जाएगी, फूल जाएगी. जब वो टैबलेट फूलेगी तो उसके सर्फेसेस सेपरेट हो जाएंगे, उससे आपकी कैपिंग हो जाएगी टैबलेट की. क्या बोला मैंने आपको कि जब आपकी एयर की एंट्रैपमेंट होगी एक कॉम्पैक्ट में, तो आपकी टैबलेट एक्सपैंड हो जाएगी. ड्यू टू द एक्सपेंशन वो इजेक्ट हो जाएगी आपकी डाई से और कैपिंग विल टेक प्लेस. अब हम इसके और कॉजेज पढ़ते हैं. इसके दो टाइप के कॉजेज हो सकते हैं. दे कैन बी फॉर्मुलेशन रिलेटेड कॉजेज एंड मशीन रिलेटेड कॉजेज.
When we study the formulation related causes, हमें formulation की सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जैसे कि granules not thoroughly dried, मे बी आपके granules ठीक से dry ना हुए हों, improper amount of binder, मे बी आपने binder का amount ठीक से ना डाला हो, improper amount of lubricant, आपने lubricant का amount ठीक से नहीं adjust किया हो, large amount of fines in the granule, fines बहुत ज़्यादा है granule में, low moisture content in granules और they have been dried more than required, या तो आपने अपने granules का moisture content बहुत low कर दिया है या फिर आपने उनको बहुत ज़्यादा dry कर दिया है, ठीक है। ये थे आपके formulation related capping के causes, granules not thoroughly dried, improper amount of binder, improper amount of lubricant, large amount of fines in the granule and low moisture content in granules. Up we come on to the machine related capping problems. Now high speed of turret, या तो आपने अपनी turret की स्पीड बहुत हाई रख दी है, एक ऑप्टिमम स्पीड आपको रखनी चाहिए, वो आपने नहीं रखी है। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ स्वीप ऑफ ब्लेड, आपने अपनी स्वीप ऑफ ब्लेड को अच्छे से एडजस्ट नहीं किया है। पुअरली फिनिश्ड डाइज, डाइज आपने बहुत ही पुअरली फिनिश्ड डाइज को यूज किया है। टीथ कॉन्केव पंचेस आपने यूज किए हैं। समटाइम्स द लोअर पंच रिमेन्स बिलो द फेस ऑफ डाई ड्यूरिंग इजेक्शन, और क्या होता है ना, कभी कभी जो आपका लोअर पंच होता है वो डाई के जो फेस है उसके नीचे आ गया इजेक्शन के टाइम, तो ये सब कैपिंग को मतलब कैपिंग के रीजंस हैं, ठीक है। अब अगर रीजंस है तो हमें इसकी रेमेडीज भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी टैबलेट में कैपिंग हो। तो अगेन रीजंस भी आपके दो टाइप के होंगे, फॉर्मुलेशन रिलेटेड रीजंस और मशीन रिलेटेड रीजंस। When we come on to the formulation related reasons, हम देखते हैं कि we can remove the fines, हमने क्या बोला था यहाँ पे कि आपके फाइन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन रिमूव द फाइन्स बाय पासिंग देम थ्रू 100 to 200 मैश स्क्रीन, मैं अपने फाइन्स को रिमूव कर सकती हूँ बाय पासिंग देम थ्रू 100 to 200 मैश स्क्रीन। एड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस फॉर मॉइस्चरिंग द ग्रैन्यूल्स, हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी डाल सकते हैं अगर हमारी ग्रैन्यूल्स मॉइस्चरिंग हमें करनी है तो, जैसे आप सॉर्बिटॉल डाल सकते हो, PEG 400 डाल सकते हो। Increase the binder amount और add dry binder such as PVP and powdered sugar, ये सब आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, तो आप बाइंडर का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप ड्राई बाइंडर डाल सकते हो लाइक PVP and powdered sugar. You can also increase or change the lubricant. Okay. Now remedies of capping in case of machine related problems, you can polish the dies properly, dies को अच्छे से polish कर दो, you can use the flat punches, you can reduce the speed of the turret, okay, adjust the sweep of blade and make proper setting of lower punch during ejection. आप अपने dies को properly polish करो, flat punches को use करो, speed adjust करो turret की, sweep of blade की को एडजस्ट करो और प्रॉपर सेटिंग करो लोअर पंच की जब आपकी इजेक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लोअर पंच की पोजीशन भी डिपेंड करती है। नाउ कैपिंग हमने पढ़ लिया, अब हम लैमिनेशन पे आते हैं। कैपिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सर्फेसेस सेपरेट हो जाते हैं। लैमिनेशन क्या होता है? Lamination refers to the separation of a tablet into distinct horizontal layers. इसमें horizontally आपके लेयर सेपरेट हो जाएंगे, whereas capping में हमने पढ़ा था upper and lower segment सेपरेट हो रहा है। Okay, lamination can occur due to the entrapment of air during compression and then its release on injection. इसमें भी अगर आपका air entrap हो गया है तो lamination हो सकता है, या फिर अगर turret की speed बहुत बढ़ गई है तो ये condition worsen भी हो सकती है। अगेन इसके भी दो टाइप के कॉजेज होंगे और दो ही टाइप के हम रेमेडीज पढ़ेंगे। पहले कॉजेज को डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेज में इसमें भी आपका लगभग सेम है कि ग्रैन्यूल्स थरोली ड्राई नहीं हुए हैं, बाइंडर और लुब्रिकेंट का अमाउंट इम्प्रॉपर है, फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर हमने ग्रैन्यूल्स को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट उनका लो कर दिया है या उनको ज़्यादा ड्राई कर दिया है। नाउ मशीन रिलेटेड ये अलग है। रैपिड डीकम्प्रेशन होगा तो लैमिनेशन हो सकता है, रैपिड रिलैक्सेशन होगा तो भी लैमिनेशन हो सकता है। सो अगर हम इसकी फॉर्मुलेशन रिलेटेड लैमिनेशन की रेमेडीज देखें तो दे आर सेम एज योर कैपिंग, तो ये आपको इजी होगा लर्न करने में क्योंकि आपके फाइन्स ज़्यादा हैं, हम मैश स्क्रीन से पास कर देंगे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ऐड कर देंगे, बाइंडर का अमाउंट इंक्रीज कर देंगे, तो ये वाली आपकी सेम है। अगर मैं मशीन रिलेटेड लैमिनेशन पे जाऊँ
तो ये थोड़ी आपकी डिफरेंट है। यूज टेपर्ड डाइज, यूज प्री कंप्रेशन स्टेप एंड रिड्यूस द टुरेट स्पीड। आप टेपर्ड डाइज यूज कीजिए, प्री कंप्रेशन स्टेप को यूज कीजिए एंड टुरेट स्पीड को रिड्यूस कीजिए। ये सब हमारा हो गया है। अब हम आते हैं चिपिंग पे। ओके, इन चिपिंग द टैबलेट एजेस स्टार्ट्स ब्रेकिंग। अब आपने सबसे पहले पढ़ा कि ऊपर नीचे के लेयर जाते हैं, फिर आपने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टली लेयर सेपरेट हो जाते हैं। अब आप पढ़ रहे हो चिपिंग में कि जो आपके टैबलेट है उसके जो एजेस हैं वो ब्रेक करने लग जाते हैं ड्यूरिंग हैंडलिंग, कोटिंग और इजेक्शन। जब आप हैंडल कर रहे हो या आप उसको कोट कर रहे हो या फिर आपने टैबलेट को इजेक्ट किया है। और ये क्या होता है, इट में अकर ड्यू टू द इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ मशीन। मे बी यू हैव नॉट डन द करेक्ट सेटिंग्स ऑफ योर मशीन, सो चिपिंग कैन टेक प्लेस। इसके भी हम कॉजेज पढ़ेंगे एंड देन अगेन वी विल स्टडी द रेमेडीज ऑफ इट। ओके, देन क्रैकिंग पढ़ेंगे। सो कॉजेज ऑफ चिपिंग हम क्या पढ़ते हैं? स्टिकिंग ऑन द पंच फेसेस। मान लो जब आप टैबलेट बना रहे हो तो वो पंच फेसेस से स्टिक कर जाए। आपने बाइंडर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो भी वो स्टिक करके रह जाएगी। आपने मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो कर दिया या फिर उनको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई कर दिया है। मशीन रिलेटेड चिपिंग पे अगर मैं आऊँ तो ग्रूव ऑफ डाई वोन एट कंप्रेशन पॉइंट। आपका जो डाई का जो ग्रूव है वो कंप्रेशन पॉइंट पर है बिल्कुल। एज ऑफ पंच फेस टर्न्ड इनसाइड और इनवर्ड। आपने जो पंच फेस का एज है उसको बहुत ज़्यादा अंदर की ओर कर दिया है या फिर बहुत ज़्यादा डीप कॉन्केविटी आपने यूज़ कर ली है पाउडर को ब्लेंड करने के लिए। सो इसके भी रेमेडीज़ होंगे। इसके अगर मैं फॉर्मुलेशन रिलेटेड चिपिंग की रेमेडीज पढ़ूँ तो वी शुड ड्राई द ग्रैन्यूल्स प्रॉपरली और हमें या फिर उनका लुब्रिकेशन इंक्रीज कर देना चाहिए। ओके, वी कैन मॉइस्चर द ग्रैन्यूल्स टू प्लास्टिसाइज, एड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, ऑप्टिमाइज बाइंडिंग और यूज ड्राई बाइंडर्स। ओके, मशीन रिलेटेड चिपिंग की अगर हम बात करें तो हमें पॉलिश कर देने चाहिए उसके ओपन एंड, रिवर्स या रिप्लेस भी कर सकते हैं हम डाइज को। वी कैन पॉलिश द डाई टू मेक इट सिलेंड्रिकल एंड वी कैन ऑल्सो पॉलिश द पंच एजेस। ठीक है, पॉलिश अगर आप कर देंगे तो आपकी चिपिंग नहीं होगी। यहाँ पे आप हमने क्या कहा था, कॉन्केविटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम पॉलिश वगैरह कर सकते हैं। नाउ आज अब पढ़ते हैं क्रैकिंग। इसके बाद क्रैकिंग तक की आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर सब चीज़ें एक साथ पढ़ लेंगे तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट्स हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। Now cracking. Cracking refers to the appearance of small cracks that can be observed on the upper and lower central surface of tablets and sometimes on the side wall of the tablet. What happens is in cracking you can see the small cracks. Okay, upper and lower surface पे आपको छोटे छोटे cracks दिखेंगे या फिर आपको side wall पे भी दिख सकते हैं। अब ये आपको क्यों दिखते हैं? अगर आपने टैबलेट को एकदम से एक्सपैंड कर दिया है या फिर आपने बहुत डीप कॉन्केव पंचेस को यूज़ किया है। इसके हम कॉजेज पढ़ेंगे एंड देन रेमेडीज पढ़ेंगे। सो कॉजेज में फॉर्मुलेशन रिलेटेड एंड मशीन रिलेटेड हम पढ़ते हैं। फॉर्मुलेशन में अभी हमने बोला कि टैबलेट एक्सपैंड हो गई है या फिर लो मॉइस्चर कंटेंट है, दे हैव बीन ड्राइड मोर देन रिक्वायर्ड एंड ग्रैन्यूल साइज इज वेरी लार्ज। मशीन रिलेटेड में भी एक्सपेंशन हो गया है इजेक्शन के टाइम क्योंकि उनमें एयर आ गया था। ये चीज़ तो हमने मोस्टली सब डिफेक्ट्स में पढ़ी है कि एंट्रैपमेंट ऑफ एयर हो जाएगा। कॉन्केविटी too deep and hence results in cracking while removing the tablet। ये एंड है, गलती से टाइपो एरर हो गया है, ये एड ही नहीं ये एंड है। ओके, सो कॉन्केविटी बहुत ज़्यादा डीप है और वो क्रैकिंग में रिजल्ट करती है व्हेन यू आर रिमूविंग द टैबलेट्स। नाउ लास्ट स्लाइड इज रेमेडीज ऑफ क्रैकिंग। Now remedies can be formulation related remedies and machine related remedies. In formulation related cracking we can reduce the granule size। आप ग्रैन्यूल का साइज छोटा कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपका साइज लार्ज था तो क्रैकिंग हो रही थी। आप उनको अच्छे से मॉइस्चर कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव द ग्रैन्यूलेशन एंड कंप्रेस इट एट रूम टेम्परेचर। मशीन रिलेटेड में यू कैन यूज आइदर द टेपर्ड डाई एंड यूज स्पेशल टेक ऑफ मशीनरी। सो ये आज हमने डिफेक्ट्स डिस्कस किए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपके हैं ये 4 जो बच गए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में आपको डिस्कस करा दूंगी क्योंकि अभी एक साथ पढ़ लेंगे तो कुछ भी हमें समझ नहीं आएगा। सो सबसे पहले हमने कैपिंग पढ़ा, उसमें अपर एंड लोअर सेगमेंट हमने बोला कि सेपरेट हो जाता है, ठीक है, पार्शली या फुली। उसके बाद हमने इसके कॉजेज पढ़े,
अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, बाइंडर लुब्रिकेंट आपने अच्छे से ऐड नहीं किया है। फिर हमने इसकी रेमेडीज़ भी पढ़ी, आप हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस डाल दीजिए, आप बाइंडर डाल दीजिए। हमने लैमिनेशन को पढ़ा कि वो डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स में सेपरेट होता है। फिर इसके भी कॉजेज़ पढ़े, रेमेडीज़ पढ़े, चिपिंग पढ़ा कि साइड से आपके जो टैबलेट के एजेस हैं वो ब्रेक करने लग जाते हैं। उसके बाद वी रेड अबाउट द क्रैकिंग ऑल्सो, इसके चिपिंग के कॉजेज एंड रेमेडीज़ पढ़ के वी मूव डाउन टू द क्रैकिंग। क्रैकिंग में हमने बोला कि स्मॉल स्मॉल क्रैक्स आ जाते हैं अपर एंड लोअर सरफेस पे एंड ऑन द साइड वॉल। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आप एक बार इसको दोबारा रिवाइज करना, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा ये पार्ट बोरिंग है, बट अगर आप इसको थ्रू डायग्राम समझोगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मैं आपको ये तब सारे डिफेक्ट्स एक्सप्लेन करा दूंगी एंड जितना ये पढ़ाया है इस लेक्चर में आप उसको लर्न करेगा विद एग्जाम्पल्स, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।